سب کے جانے کے بعد اب پیچھے صرف رمیسا اور ہادی رہ گئے تھے۔ ہادی جو بکھرا کھڑا تھا، یہ حقیقت اتنی خطرناک تھی کہ اسے تسلیم کرنے سے جان جا رہی تھی۔ صرف سوچنے سے ہی اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے مارا تھا۔ اتنا عرصہ وہ دنیا کے سامنے ڈھونگ رچا کر بے چارگی کا ناٹک کرتا رہا تھا۔ ہادی، فواد صاحب کی باتوں کی وجہ سے وہ خوف سے اس کی طرف مڑی جو پہلے ہی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم اس کھیل میں شامل تھی رمیسا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رمیسا کی آنکھیں ڈر سے پھیل گئیں۔ بے ساخت اس نے اپنے حلق کو ترک کیا۔ ہادی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے جواب دو، کیا تم میرے باپ کی اصلیت سے پہلے سے واقف تھی؟ اس کی بات کاٹ کر وہ دھڑا۔ رمیسا خوف سے اچھل پڑی۔ وہ لب کاٹتے ہوئے سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ سوچ کر ہی اس کے آنسو اس کے گالوں پر پھسل آئے۔ بتاؤ مجھے۔ وہ یکدم آگے بڑھتا اس کے بازو کو سختی سے جگڑے دھرا۔ ہادی پلیز۔ وہ در سے کڑھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ تم، بہرام، ملک اور سب ملے ہوئے تھے اس کھیل میں، ہاں یا نہ؟ وہ اس کے بازو کو جھٹکا دیتے وہ گڑگڑایا۔ اس نے روتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا۔ اسی پل ہادی نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اپنے قدم پیچھے کی طرف لیے۔ بدلہ لینے کے لیے آئی تھی میری زندگی میں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ کیا اسی طرح سب ہی کھیل رہے تھے زندگی سے؟ سب یہاں بھروپے تھے؟ اس کی معصوم ہارٹ بیٹ بھی؟ نہیں، ایسا مت سوچنا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ہادی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تڑپ کر اس کے سینے سے لگی۔ ہادی نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسا پیار ہے تمہارا رمیسا؟ میں نے تم سے اپنا کچھ بھی نہیں چھپایا، اور تم نے مجھ سے اتنا سب کچھ چھپایا کیسے؟ دکھ سے کہتے آخر میں وہ چلا اٹھا۔ وہ ڈر کر اس سے دور ہوئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ بکھر جائیں گے، مجھے چھوڑ جائیں گے، مجھ سے پیار نہیں کریں گے۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ہادی۔ آپ کی طرح میرا بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح آپ سے آپ کی ماں کو چھین لیا گیا تھا، اسی طرح مجھ سے میرے باپ کے سائے کو چھین لیا گیا۔ وہ اسے دیکھتی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل نیچے گری۔ کچھ نہیں میرے پاس اب کھونے کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، مجھ سے بدگمان مت ہو ہادی۔ میں جی نہیں سکوں گی، آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے میرا۔ ہادی چوہان کی محبت کے علاوہ رمیسا کے پاس کچھ نہیں۔ وہ چیختی ہوئی اس کے پاؤں میں گڑ گڑاتی بھیک مانگنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہادی کا دل جیسے کسی نے نوچ لیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ کون تھا اس کے علاوہ؟ ایک تو اس کے باپ نے اتنا سب کچھ کیا اور ان معصوموں کے ساتھ، اوپر سے وہ معافی مانگنے کے بجائے اس پر چلا رہا تھا۔ ہارٹ بیٹ، اس نے سرگوشی میں پکارا۔ جس پر سر جھکا سکتی رمیسا ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنے نام کی پکار پر اس کی سرخ بھوری آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور مسکرا دی۔ اسے دیکھنے پر ہادی نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ ہادی، وہ روتی ہوئی اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور ہادی نے اسے خود میں بھیج لیا۔ آئی ایم سوری ہارٹ بیٹ۔ اپنے لبوں سے اس کے آنسوؤں کو چنتے وہ اسے اٹھائے وہاں سے جانے لگا۔ اب یہاں تھا ہی کیا، سب حرام کا تھا جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ اسے اٹھائے اپنی گاڑی میں آیا، فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس سے وکیل کو کال کی۔ اس کے نام کچھ نہیں تھا سوائے اس سے زیادہ ذلیل نہیں ہونا پڑا۔ اس گھر اور ساری پراپرٹی کی نیلامی میں وکیل سے بات کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا جہاں وہ ابھی بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھتی بولی۔ رو خود رہی ہو اور پوچھ مجھ سے رہی ہو؟ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ انڈر اسکرین سے پار دیکھتی بولی۔ ابھی تو اپنے فلیٹ پر جا رہے ہیں، پر بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ چپکے سے اپنے آنسو صاف کرتا بولا۔ کہاں جائیں گے؟ ہادی اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کہیں دور۔ میڈیا کے لوگوں کے بیچ سے کس کی گاڑی زن سے نکلتی چوہان والا کی حدود سے دور ہوتی چلی گئی، اس والا کی حدود سے جس کی بنیادیں معصوموں کے خون بہا کر رکھی گئی تھی۔ وہ ان سب سے بہت دور اپنی ہارٹ بیٹ کو لے جا رہا تھا۔ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ یہ جملہ جتنے دن حارث خان ریمانڈ میں رہا اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ سارے ثبوت اور گواہوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے انہیں اور فواد چوہان کو سزائے موت سنائی تھی۔ حارث خان کی ساری پراپرٹی ہانیہ کے نام تھی۔ اس نے اپنا گھر بہرام بہزاد کے مشورے پر الخدمت فاؤنڈیشن کے سپرد کر دیا تھا اور بینک بیلنس غریبوں میں کچھ مدرسے اور مسجدوں کی تعمیر کے لیے دے دیا تھا، جبکہ فواد خان کی ساری پراپرٹی قرضے میں نیلام ہو گئی تھی۔ فواد چوہان
चौहान ने हादी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, पर वो यहाँ होता तो इनसे मिलता। इससे पहले ही वकील से कहकर मिलने से इनकार कर दिया था। हानिया होश में आई तो बहराम बहसदार से के साथ हारिस साहब से मिलने के लिए जेल आई। इन्हें ये तो नहीं बताया कि बहराम ही बैरी था, पर ये ज़रूर कहा कि इसका बैरी मिल गया है। बाकी की सारी बात की समझ हारिस और फवाद को खुद आ गई थी। वो बाप को ऐसे कामों पर मुलामत करते हुए बिखर कर रोई थी, पर हकीकत को कौन झुटला सकता था कि हारिस खान को फांसी होने वाली थी। वो बहराम का मशकूर था, जिसने ये जानते हुए भी इसकी बेटी से इसका हवानी रूप छुपाया। वो नतीजन वो इनसे मिलने आई थी। आखिरी वक्त में इन्हें अपना चेहरा दिखाया था। हारिस साहब के लिए यही काफ़ी था। उन्होंने तो अपने भाई को इतनी सी भी मोहलत नहीं दी थी। अब्दुल्ला का बेरी का कहना, हानिया का बेरी कहना, वो समझ गए थे कि बैरी कौन था, कहाँ से आया था। वो तो सालों पहले जंगल से मुर्दा बनकर मिला था। फिर ये कौन सी हकीकत थी, ये समझ से बाहर था। या इनकी बेटी ने फिर किसी दूसरे बहराम को बैरी बना लिया था। कमिश्नर और जुबैर को भी इनके गुनाहों में बराबर का शामिल होने पर मुल्क के दुश्मन से मिले हुए पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हारिस खान और फवाद चौहान को कहीं उम्मीद थी कि कमील हाशमी और कमरूज ज़रूर इन्हें बचाने आएंगे, पर इन्हें ये सुनकर धचका लगा कि वो पहले ही से पाकिस्तानी फ़ौज की हिरासत में थे। अगर ये पकड़े गए थे तो बहजाद कैसे बच गया था, ये सवाल इनके दिमाग में घूम रहा था। कल इन्हें फांसी दी जाएगी, इनकी बेटी का क्या हाल होगा। वो सोचते ही तड़प जाते। कितना जुल्म करते आए थे इस मासूम सी लड़की पर, अपने खून पर। रात का दूसरा पहर था और वो दोनों जागकर एक एक सेकंड आंखों में काटते गुजार रहे थे। हादी के चले जाने की न्यूज़ ने फवाद चौहान को गुमसुम कर दिया था। इनकी नज़रों के आगे अपनी मासूम बीवी और भूख प्यास से सिसकता हुआ बच्चा घूम रहा था। अब तो लगता था जैसे कब्र भी दोनों को जगह ना देगी। तुमने कुछ सुना? हारिस खान एकदम अंधाधुन फायरिंग की आवाज़ पर परेशान से उठ खड़े हुए। फवाद खाली खाली नज़रों से इन्हें देखने लगे। अचानक एक फायर से इनके लॉक अप का ताला तोड़ा गया और वो दोनों घबरा कर दूर हुए। इन निकाब पोशों को देखकर, बाहर निकलो। इनमें से एक अंदर बढ़कर इन्हें बाहर की जानिब धकेलता हुआ बोला। तमाम पुलिस एहलकार इन निकाब पोशों पर राइफल ताने खड़े थे, पर इन निकाब पोशों ने हारिस खान और फवाद चौहान यरमगाल बनाकर इन्हें किसी भी किस्म का एक्शन लेने से बाज रखा। हवाई फायरिंग से वो इन्हें हरासा करते इन दोनों को घसीटकर वहां से निकल गए। गाड़ी में बिठाती इन दोनों को बेहोश कर दिया गया। बहजाद मुसलसल बुखार में पड़ी रिफानिया के करीब बैठा था। इनके साथ मिसेस शमीम और जफर मलिक भी रूम में मौजूद थे। दफ़ा इसका मोबाइल बजा। आईजी सरफराज जंजूर की कॉल देखकर वो उठा। जब हानिया ने घबराकर इसका हाथ पकड़ लिया। बैरी, उसने रोते हुए उसे पुकारा। पास बैठी मिसेस शमीम ने इसके माथे पर बूसा दिया। बस 2 मिनट आ रहा हूँ। इसके गाल थपथपाकर वो मोबाइल देखता बोला। हानिया ने आस्था से इसका हाथ छोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकला। इसके पीछे जफर साहब भी बैसाखी पकड़े उठे। जेंटलमैन, तुमने अपना फर्ज निभाते हमें मुल्क के दुश्मन जिंदा ला कर दिए थे, और आज हमने अपना अहद निभाते तुम्हें तुम्हारे दुश्मन पहुंचा दिए हैं। मैंने जहान और जहांगीर को भी ड्रेस भेज दिया है, तुम भी भेज रहा हूँ। कल इस एड्रेस पर रात में पहुंच जाना। वो मुस्कुराते हुए बोले। बहुत शुक्रिया आपका। बहजाद की गहरी नीली आंखों में एक चमक पैदा हुई। इस शुक्रिया के बदले अपनी शादी में बुला लेना। हमारी बच्ची ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया है। वो हंस कर बोले। बहजाद ने तानिया का सोचती कहका लगाया। इसको मेरा शुक्रिया अदा कर देना और कह देना तुम्हारा भी बॉडीगार्ड ज़रूर आएगा। वो शरारत से बोला और आईजी साहब भी कहका लगा उठे। वो सामने काउच पर बैठी बॉडीगार्ड मूवी देखती तानिया को देखने लगे, जो मूवी देखने के साथ सू सू भी कर रही थी। मैंने इतना साथ दिया आपका, मुझे एक दफ़ा प्रपोज ही कर देते। उसने दुख से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। उसने हंसते हुए कहा। नहीं, रहने दो, मुझे अभी नहीं मरना। तुम्हारी बीवी तो यूनिवर्सिटी में ऐसे देखती थी जैसे कच्चा निकल लेगी। वो मुंह बसोर कर बोली। बहजाद ने कहका लगाया। शादी में ज़रूर बुलाना। वो याद दहानी करवाती वापस काउच पर चली गई। आईजी साहब अपनी साहबजादी की हरकतों पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। चंद एक पब्लिक के रिएक्शंस की बातों के बाद
अलविदाई कलमात कहकर उन्होंने मोबाइल रख दिया। वो वापस जाने के लिए मुड़ा तो पीछे जफ़र साहब को तासुफ से खुद को घूरते पाया। बहरान अब ख़त्म करो, बस भी करो। बहजाद ने मुस्कुराकर सर झटका। डैड वाकई पुराना ज़रूर हुआ है मगर ज़ख्म अभी ताज़ा है, वो सख्त लहजे में कहता अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे जफ़र साहब अफसोस से सर हिला गए। वो रूम में आके हानिया के पास बैठा और मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरने लगा। मैं इसके लिए सूप बनवा कर लाती हूँ। मिसेस शमीम कहती वहाँ से निकली। कमरे में अब सिर्फ वो दो ही रह गए थे। क्या हुआ? इसके आंसू बहते देखकर वो मोहब्बत से बोला। हानिया रोती हुई सर हिलाती आंखें मूंद गई। बहजाद ने हाथ बढ़ाकर उसे समेट कर अपने सीने से लगाया और इसके आंसू साफ करने लगा। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरे बाप को इसके काले कामों की वजह से फांसी हो रही है। बहजाद ने अफसोस से देखते हुए झुक कर इसके बुखार में तपते गालों पर अपने लब रखे। जल्द ही चलेंगे, मैं किसी खबर को भी तुम्हारे करीब फटकने नहीं दूंगा, रिलैक्स हो जाओ। वो इसका सर थपकता बोला। हानिया उसे बेबसी से देखती रह गई। बहजाद हानिया को सुलाकर अनवर की तरफ निकल गया। अभी उसे अपने यार की सारी हकीकत बताकर उससे सॉरी भी करना थी। बेशक उसने मौलवी के लिए पैसों का असूल मिनिस्टर के जरिए किया था मगर इस पर खर्च अपने पैसे किए थे। वो तो कोई दूसरा इरादा रखता था हारिस खान के स्मगल के कारोबार में घुसने के लिए, पर अल्लाह ने उसे इतना आसान रास्ता दे दिया कि बाकी के रास्ते खुद ब खुद खुलते गए। एक तो इसके साथ रहते खुद गर्ज लोगों का चेहरा आ गया था जिन्हें पैसे इतने अजीज थे कि इंसान भले मर जाए पैसों को दफन करके रखना था। पता नहीं क्यों इंसानियत से ज़्यादा दौलत की अहमियत होती जा रही थी। रिश्ते बेनाम बन रहे थे, इनकी कोई अहमियत नहीं थी। बस पैसा हो और पैसा। पहले जिसके पास पैसा होता था वो अपने से कम गरीब की मदद करते थे। आज जिसके पास पैसा है वो अपने से कम गरीब से नफरत करता है। उसने मौलवी के बड़े बेटे को स्टोर खोल कर दिया था बल्कि वो अब अपना नाम जाहिर किए बिना अपने यारे से लेकर इस मोहल्ले के बहुत से गरीबों की मदद कर रहा था। अनवर की मुसलसल कॉल्स आ रही थी। वो इतना ऐसा गायब था रहा जानता था वो परेशान हो गया होगा। उसने ये भी सुना था हारिस खान के गार्ड से कोई अनवर नामी लड़का तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था, पर मायूस लौट गया जब वहाँ से लाजमी का इजहार हुआ। तो वो इस वक्त एक खूबसूरत कैफ़े में बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। फिर इंतज़ार इतना तवील नहीं हुआ। सामने ही कैफ़े की पार्किंग एरिया में वो बाइक रोकता नज़र आया। बहजाद उठकर मुस्कुराता साइड पर हो गया। उसने देखा था कि वो खुशी से खिलता आ रहा था, लब मुस्कुरा रहे थे और नज़रों में गुस्सा भी था। दोस्त को देखने की तड़प भी। गधे को ये नहीं मालूम कि अब्बा सिर्फ 100 रुपया ही देता है और ये कमीना इतने बड़े कैफ़े में आ गया। यहाँ तो पानी का गिलास भी 300 से ऊपर ना हो। चाय खाक पियेंगे। अनवर इस कैफ़े को देखता परेशान था। वो दिल ही दिल में जल कर रह गया। कपड़ों से सलवटें निकालने की कोशिश में वो आगे बढ़ा। बहरिए, बहजाद बुड़बुड़ा कर मुस्कुराया और वो जब अंदर दाखिल हुआ तो हाउ कहता उसे पीछे से बाजू में जकड़कर ऊपर उठा लिया और जोरदार कहकर लगाया, उतार नीचे कमीने, मुझे जवाब दे, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। टांग नीचे से इसके घुटने पर मारकर वो गुस्से से बोला। आसपास बैठे लोग दोनों की यारी पर हंस पड़े। चल तू गुस्से में है तो मैं कुछ माह बाद आता हूँ। उसे उतार कर वो मुड़ा और जाने लगा। अनवर हड़बड़ा गया। अरे कमीने! वो गुस्से से इसका कॉलर पकड़कर खींचता हुआ अपने बराबर करता दहाड़ा। इसके चेहरे को देखकर बाकी के लफ्ज मुंह में ही दब गए। तू बहरिए नहीं। इसकी भूरी शेव ओशन ब्लू आंखें, भूरे मायल बाल जो एक स्टाइल से सेट थे और फिसल कर इसके माथे पर आ रहे थे, मगरूर खड़ी नाक, बड़ी भूरी मूछें, आपस में फुंस अनाबी लब। वो तो बिल्कुल इसका जंगली बहरिए नहीं लग रहा था, ये तो कोई और था। पैसे ने बदल दिया यार तुझे, बिल्कुल कोई बादशाह का बेटा लग रहा है। वो खुशी से बेहाल होते बोला, तेरी आंखें काली से नीली हो गई, तेरे लंबे बाल काले
से भूरे होकर छोटे हुए, इनमें स्टाइल आ गया। दाढ़ी मुझे अपना रंग बदलने के साथ छोटी भी हो गई। क्या खाया है रे? अमीरों का जूठा तो नहीं खा लिया? वो उसे सर से पांव तक देखता तंजिया बोला। कद काट वही, चौड़ा वसी सीना भी वही, सांस वही, मोहब्बत यारी अंदाज वही था, बदला था तो इसका ज़ाहिरी नक्शा। इसकी हुनको सूरत देखकर बहजाद ने बुलंद बांग कहका लगाया और उसे खींचकर अपने सीने में भेजा। मेरा मासूम दोस्त, दोस्त भी एक नेमत होते हैं कमीने, देख इतना बदल गया पर तुझे नहीं भूला। चल अब इस कर्ज को फर्ज अदा कर और चाय का कप पिला। वो हंसता हुआ उसे खींच कर चेयर पर पटकता दूसरी तरफ से खुद आया। उसने तो सोचा था बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसे यकीन दिलाने के लिए कि ये वही है बहरिया, पर यहाँ तो सिस्टम ही उल्टा था। जिस तरह इसकी स्ट्रा से एक जंगली रूम में भी सिर्फ इसके एहसास से पहचानती थी, वैसे इसका दोस्त भी उससे पहचान गया था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि इसकी ज़िंदगी में बहुत खालिस लोगों ने जो इसके दिल के करीब थे। हाँ, बस इसका बाप धोखा खा गया था अपने सगे खून से। चल अब चाय पिला। वो उंगलियों से टेबल की सतह बजाते बोला और चेयर से पुष्ट इटका दी। क्या बेगैरती है, पिछली दफ़ा मैंने पिलाई थी, इस बार मेरे पास सिर्फ 100 रुपये पड़ा है। ज़्यादा कमीनापन छोड़ और सीधे से 2 प्यालियाँ मंगवा। उसे घूरता वो भी कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा आस्ताइश से पूरे कैफ़े को देखने लगा और बहजाद इसकी आंखों की चमक को। इसे बनाने में कितना पैसा लगेगा रे? वहाँ रखी चेयर्स, टेबल्स, खूबसूरत काउंटर और इसका मुंह एक पल के लिए खुला और फिर वो आस्ताइश से आबरू चुका कर रह गया। क्यों, तुझे बनवाना है क्या? 2 कप चाय का इशारा अपने मुलाजिम को देते हुए इसकी तासर देखता पूछने लगा, जिस पर नूरे ने कहका लगाया। हाँ, इतनी औकात कहाँ अपनी, बस सोच रहा था कि इसके जैसा नक्शा दे दूं और बाहर एक खूबसूरत बोर्ड लिखकर लगा दूं, अनवर कैफ़े, और पास वो एक पुरानी बस नहीं खड़ी वैसी सोच रहा हूँ। इसकी खिड़की के शीशे निकाल कर अपने कैफ़े की साइडों पर लगा दूं। क्यों, कैसा लगेगा? सारा नक्शा पेश करते उसने आखिर में दाद चाही। बहजाद जो आंखें सुकड़ाए सुन रहा था कहका लगा उठा। सोच ये तेरा हो जाए तो? कप लबों से लगाते इसने पूरे कैफे की तरफ इशारा करते पूछा। अनवर इंसान झटक कर मुलाजिम का रखा हुआ चाय का कप उठा और घूर कर सूट बूट खड़े वेटर को देखा जो मुआबद सा खड़ा था। याद आती ही जेब में पड़े 10 का नोट निकाल कर इसकी ट्रे में रखा। मुलाजिम ने नासमझी से 10 के नोट को देखा और फिर अनवर की तरफ। टिप है भाई, ले जा, ऐश कर, याद रखिएगा किसी सखी से पाला पड़ा था, उसने कहती हुई टांग पर टांग रख ली। बहजाद ने मुस्कुराहट लोगों में दबाते मुलाजिम की मुस्कुराहट को देखते उसे घूर कर ले जाने का कहा। वो सर हिलाता शुक्रिया कहता टिप उठाकर ले गया। जब अब्बा ने 8 पढ़ा कर स्कूल से निकाल दिया था कि आगे हमारी हैसियत नहीं पढ़ने देती, तब ही मेरे रोने पर समझा दिया था कि जितनी बसात हो इतने सपने देखे जाते हैं, बाकी के जो देखते हैं वो धुआं बन जाते हैं। उस दिन से अपने छोटे से खोखे को ख्वाब समझकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वरना तो ख्वाब शहर में बड़े से होटल में जाने का था। वो एक दोस्त की हैसियत से मुस्कुराकर उसे बताने लगा। चल एक खबर सुनाता हूँ कमीने, तू था नहीं, कितना याद किया तुझे। वो भड़क उठा। कप रख। बहजाद अचानक इसके मूड बिगड़ने पर हैरान हुआ। पहले तू बता, तू दे हुआ क्या? बहजाद सीरियस होकर इसके सूख चेहरे को देखकर पूछने लगा। निकाह हो गया है मेरा मौलवी की छोटी बेटी से। मैं तुझे गवाह के तौर पर देखना चाहता था, पर तेरी गुमशुदगी ने मुझे तोड़ दिया था। कमीने, बात करते इसकी आंखें भीग गई। बहजाद मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ आया और उसे खींचकर सीने में भेजते मुबारक दी। दिल खुश कर दिया शहजादे, सचमुच बहुत चंगा काम किया है। दोनों ने मुस्कुराते एक दूसरे को गले लगाया। अच्छा चल बता, ये मिनिस्टर वाला मामला सच है क्या? वो सच में एक स्मगल था और इसने अपने भाई, भतीजे, भाभी और बीवी को मारा था। अब संजीदा सादा कुर्सी पर वापस बैठते पूछने लगा, जिस पर बहजाद ने गहरा सांस भरा और उसे अपने
साथ बाहर चलने का कहा। वो दोनों एक दूसरे के पीछे जाते कैफे की बैक साइड पर आ गए जहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। यहाँ क्यों आए हैं? अनवर ने आसपास देखते हुए पूछा। तुझे अपने बारे में एक हकीकत बतानी है, तलखी से मुस्कुराते हुए कहा। अनवर इसके लहजे पर चौंकता हमदन गोश्त हो गया। बहजाद ने उसे देखते हुए बोलना शुरू किया और इसी हिसाब से इसकी आंखें फटती चली गईं। आखिर में तो जिससे इसकी आंखों में लहू उतर आया था। फिर मैडम मतलब कि भाभी को नहीं बताया इसके बाप का हैवानी रूप? गहरा सांस भरते कई लम्हे वो कुछ बोलने के काबिल ना रहा, जैसे हलक में कांटे उग आ गए हों। गहरे सांस भरने के बाद वो फिर बोला, नहीं, मैंने उसे और तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि हम सिर्फ मोहब्बत नहीं एक दूसरे की तकलीफ भी महसूस करते हैं। वो सारी उम्र मेरी तकलीफ पर तड़पती आई है, मैं उससे और तकलीफ नहीं दे सकता। अभी भी वो काफ़ी तकलीफ में है, सिर्फ ये जानते कि इसका बाप मुल्क से गद्दारी करता था, स्मगल करता था। सुन बहरिए, उसने भराई आवाज़ में से पुकारा। वो मुस्कुराता से आसमान से नजरें हटाए सुर्ख होती ओशन ब्लू आंखों से उसे देखने लगा। सलूट करने को दिल करता है कि ऐसे भी शेर इस ज़मीन पर हैं जो इतना सब कुछ बर्दाश्त करते जिंदा रहते हैं सिर्फ अपनों के लिए। वो उसे सलूट करता बोला। बहजाद हंसता हुआ उसे खींच कर गले लगा गया। भूल तो नहीं जाएगा इस अनवर खोखे वाले को? अब तो तू एक बड़ा आदमी है। कमीने कैसी एक बदबूदार कमरे में रहता था तू? हैरत है मुझे। वो इससे अलग हो तो आंखें साफ करते बोला, यार उसे छोड़, मैडम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्या बकवास थी? भूलने वाली बात कमीने, तुझे भूल सकता हूँ? वो एक मुक्का जुड़ता बोला। अनवर कहा उठा। बहजाद ने मुस्कुराते हुए जेब से एक चाबी और पेपर्स निकाले। मेरी तरफ से तोहफा निकाह का है। उसने इसका हाथ पकड़ते इस कैफे के पेपर्स और चाबियां इसके हाथ पर रखी। अनवर ने उसे देखा और फिर अपने हाथ को। मेरे लिए तेरी दोस्ती एक तोहफा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुझसे, समझा? बस कभी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में ये सोचना कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त अल्लाह की तरफ से नेमत होती है, जैसे मेरी ज़िंदगी में तू। वो रोते हुए बोला। बहजाद कहका लगा उठा। और मेरी ज़िंदगी में तू? मैंने अपने स्टॉक के अलावा कभी किसी से दोस्ती नहीं की, पर तू वो वाहिद बंदा है था जो मेरा सच्चा और मुखलिस यार है, इसने दिल से कहा और वो खुश होता सर हिला गया। इसके बाद वो बातें करते रहे। बहजाद ने उसे बताया कि वो जल्द ही शादी करने वाला है और उसे शादी में ज़रूर आना है, मौलवी की फैमिली के साथ। बहुत दुआएं और एहसान हैं तुम सब के मुझ पर। फिर ज़बरदस्ती उसे कैफ़े के पेपर्स ये कहकर थमाए कि वो हर शाम को चाय पीने आया करेगा और इसकी खुददारी को ठेस ना पहुंचाते वो कैफ़े उसे ये कहकर दिया कि उससे जितना तो एक महीने का कमाएगा, इसका आधा तो अपने मोहल्ले में किसी गरीब के घर में दे देना। वो फिर भी लेना तो नहीं चाहता था, पर इसकी यारी तोड़ने की धमकी से खौफजदा होता उसने हामी भर ली और कि वो हर माह के कमाए पैसों से आधी इसकी ख्वाहिश के मुताबिक मोहल्ले के किसी गरीब घर में देगा। बहजाद खुश हो गया और फिर काफ़ी देर वो बातें करते रहे। इसके बाद बहजाद ने उसे कैफ़े के ऑनर से मुलाकात करवाई। चंद रस्मी बातों के बाद उन्होंने कैफ़े की बाबत मालूमात दी अनवर को। अब तुझे तेरा ख्वाब पूरा करना है और इस कैफ़े को बदल कर एक होटल के रूम में लाना है, बहजाद ने जाते जाते कहा। वो जी जान से राज़ी हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह को मेरा ये ख्वाब इतना पसंद आ गया था। इससे मिलते ही वो वहाँ से चला गया और इसके जाने के बाद ड्राइवर इसके लिए गाड़ी लाया। वो बैठकर वहाँ से निकल गया। बहजाद ने कैफ़े ऑनर को कुछ दिन के लिए पैसे देकर अनवर के लिए रख लिया था ताकि वो उसे सब कुछ समझाए दे कैसे चलाना है इस कारोबार को। मलिक मेंशन के पार्किंग एरिया में गाड़ी के रुकते ही मुलाजिम ने इसके लिए भागकर दरवाज़ा खोला। वो बाहर निकलकर अंदर बढ़ा और अपने कमरे में आकर फ्रेश होते जब हानि कमरे के सामने खड़ा था, अपने मॉम डैड के रूम के दरवाजे को बंद देखते हुए इसका डोर इन लॉक करते अंदर आ गया। सामने ही वो जहाजी साइज गुलाबी बेड पर ब्लैंकेट में डबकी सोई हुई थी। बहजाद मुस्कुराता हुआ इसके पास आया। इसके सुर्ख तपते चेहरे को देखकर वो इसके पास लेटा। कल आधी स्ट्रॉबेरी खाने के बाद से इसका गला दुख रहा था। ये दोनों स्ट्रॉ इसकी सेहत के लिए ख़तरनाक थी, पर इन दोनों के बगैर गुजारा भी तो नहीं था।
उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते इसके नाजुक वजूद को देखा और आहिस्ता से बाजू इसके नाजुक कमर में डालते खुद से करीब तर कर लिया। हानिया इस अचानक हमले पर बुखलाती आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अपने करीब लेटे बहजाद को देखते इसकी गर्म तेज तेज चलती सांसें थम सी गईं। वाइल्ड मैन इसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने लगी, पर बुखार ने इसमें हिम्मत कहाँ छोड़ी थी। इसके सारे वजूद को निचोड़ दिया था। वो सब्ज आंखें जिनमें बुखार की वजह से सुर्ख डोरे पड़ गए थे, वो बहजाद को लहसती पलकों से देखती खुद से दूर करने में हलकान थी। इसकी छोटी सी सुर्ख नाक, शंगाफी लब, गुलाबी रुखसार, थोड़ी पर मौजूद 3 तिल जिन्होंने उसे बहुत तड़पाया था। इसका करीब होना उसे बेखुद कर देता था। आज उसके सारे वजूद को अपनी मलकियत में देखकर अपनी बाहों में भरता हुआ दिलकशी से मुस्कुराया। इसके मुसलसल कसमसाने पर बहजाद ने दूसरा बाजू भी इसकी कमर में डालते हुए इसे मजीद करीब कर लिया। अब बहजाद की गर्म सांसें हानिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये यहाँ क्यों आए हो? वो आंखें मेज कर इसकी उंगलियों की सरसराहट अपनी कमर पर महसूस करती अपनी सांसें बहाल करने की तकद्दो में नढाल होई जा रही थी। स्टार तकलीफ में है ना, तो बैरी कैसे दूर रह सकता है? ना वाइल्ड मैन, ना ही बहराम बहरदार मलिक, और सबसे ज़रूरी बॉडीगार्ड को इस सूरत हाल में अपनी मैडम के पास होना चाहिए। सो मैं आ गया। उसने मुस्कुराते हुए इसकी उधम मचाती धड़कनों की तार को अपने सीने पर महसूस करते इसकी नाक पर अपनी नाक रखते गहरे सांस भरे। वो सहम सी गई। शर्म नहीं आती एक लड़की पर 4 लड़के फिदा करते? वो बेबसी से कहती आंखें खोले उसे देखने लगी। बहजाद ढीठ बना मुस्कुराया और उसे देखते इसके सुर्ख लबों पर अपने लब रखे और फिर इसकी थोड़ी के नुक्तों को छुआ। मेरे हर रूप का जुनून हो तुम, चाहे बैरी हो, चाहे बॉडीगार्ड हो, या चाहे बहराम बहरदार मलिक हो, सबकी धड़कनों में एक ही सुर है, हानिया खान के नाम का। इसके कान में सरगोशी करते उसने इसकी गर्दन पर अपने लब रखे और इसकी कमर के गिर्द कायम हारिस को मजीद तंग करते उसे खुद में भींच लिया। वो जो पहले ही नडाल थी इसके लम्स पर इसकी बाहों में बिखर गई। बहजाद ने मुस्कुराते हुए उसे खुद में समेटते इसके सुनहरी बालों में उंगलियां फंसाई और इसके रेशमी से नाजुक रखसारों पर अपनी शेव को रगड़ा। वो सिसक उठी। प्लीज़। वो इसकी शिद्दतें मजीद सह ना पाई तो इसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद दूर कर दिया। करवट बदलते अपनी धड़कनों पर हाथ रखती वो अपनी सांसों को हमवार करने लगी। बहजाद ने इसकी हालत पर तस खाते इसके ऊपर ब्लैंकेट डाला और मुस्कुराते हुए इसकी कमर में बाजू डालकर वापस अपने करीब कर लिया। बैरी। हानिया की पुश्त इसके सीने से टकराई तो वो तड़प उठी। कुछ नहीं मेरी जान, सो जाओ बस। इसके बालों पर भूसा देते इसका सर अपने बाजू पर रखते इसके हाथों को पकड़कर इसकी उंगलियां चूमते उसे खुद में समेटकर वो आंखें मूंद गया। हानिया खुद को तपते सहरा में महसूस कर रही थी। अपने बैरी का घना साया खुद पर महसूस करते हुए मुस्कुराती हुई इसका बाजू जो इसकी कमर के गिर लिपटा हुआ था उसे अपने हाथों में थामकर सोने की कोशिश करने लगी। दहशतगर्द जो हमला पुलिस एहलकारों पर करके हारिस खान और फवाद चौहान को लेकर गए थे, इसने पब्लिक में उधम मचा दिया था। हर तरफ लोग इनके पकड़ने जाने की दुआएं मांग रहे थे और कोई इन्हें नोचने की ख्वाहिश करता। किसी की सिसकियां और आहों को कबूलियत तक पहुंचा गया। बहजाद की सुबह आँख खुली तो करीम ने उसे कॉल करके सारी सूरत हाल बताई। उसने घर में इस न्यूज़ पर बात करने से मना कर दिया था। मिसेस शमीम और मलिक ज़फ़र भी मुत्तफिक थे। इसने करीम से बात करने के बाद इसने मोबाइल वापस रखा और अपने हारस में सोई अपनी मैडम को देखा। सुनहरी बाल बिखरे हुए इसके सीने और गर्दन पर पड़े थे और वो इसके सीने पर सर रख के गहरी नींद में होश में थी। उसने आहिस्ता से खुद पर पड़ी अपनी ज़िंदगी को बाजू पर डाला और इसके चेहरे से बाल समेटे। हानिया इसके लम्स पर कम समसा कर फिर से सो गई। इसकी हरकत को देखते बहजाद मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग स्टार। झुककर इसके लबों को हल्का सा छूते गोया हुआ। मुझे सोना है। हानिया ने इसके लम्स पर कम समसा कर जरा सी आंखें खोलकर उसे देखा और इसके चौड़े सीने के गिर्द बाजू
अपना बाजू डालते इसके सीने पर सर रख कर फिर से सो गई। बहजाद के चेहरे पर बहुत दिलकश मुस्कुराहट ठहर गई। ये शुक्र था कि इसके दिमाग में आज अपने बाप का अंजाम नहीं घूम रहा था। इसके मुताबिक इसके बाप को आज फांसी होने वाली थी। इस्रार जान ऑफिस जाना है और मॉम आ जाएंगी तो वो बड़ा मैंने खेत सवाल करते करते रुक गया। हानिया का जब दिमाग बेदार हुआ और इसके सवाल को समझा तो बल खाकर इससे दूर हुई। आंटी आ गई तो वो बदहवासी से बेड पर फैल कर लेटे देखकर बोली तो बहजाद ने इसकी तरफ करवट लेते कहनी तकिए पर अटका कर हाथ पर सर रखा और तबस्सुम लहजे में पूछा। इसकी पलकें लहज गई तो तुम जाओ ना। वो माथे से पसीने के कतरे साफ करती मनमनाई। बहजाद इसका ये रूप देखकर जैसे बेखुद हो गया। उसने हाथ तकिए पर रखा और कुछ इसकी तरफ झुका। हानिया घबरा कर उसे देखती पीछे होने लगी। वो इस पर झुकता गया और हानिया बदहवासी इसकी गहरी नीली आंखों में देखती तकिए पर घिस सी गई। बहजाद ने तबस्सुम आंखों में सजाए इसकी दाएं बाएं अपने बाजू उठकाए। मैडम, इस गुगली वाले डब्बे से सब कुछ तो मिल सकता है पर आप नहीं, इसलिए आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। इसके नाजुक हाथों की मखमली उंगलियों अपनी मजबूत उंगलियों में फंसा कर तकिए से लगाया। हानिया आंखें फैलाए खुद पर झुके बहजाद को देखने लगी, फिर अपनी दोनों तरफ कैद हाथों को भी देखा। वर्ल्ड मैन, शर्म नहीं आती अपनी मैडम के साथ ये सब करते हुए? शर्म से सुर्ख होती बेतरतीब धड़कनों के साथ वो अपने हाथों को छुड़वाने के लिए मचली। हम पैदाइशी बेशरम हैं मैडम, और हमें बिगाड़ने में सरासर आपका हाथ है। अब खामोश हो जाएं। जब तक मॉम डैड नहीं जाग जाते तब तक एंजॉय करते हैं। इसकी खराब इंग्लिश पर वो दांत पीसकर इस पर झपटी। इसी पर इसके इरादों को समझते उसने इसके हाथों पर पकड़ सख्त कर ली और इस पर साया बनकर झुक गया। वो अपनी सांसें रोक जाने पर मचलने लगी, पर वो कहाँ बाज आने वाला था। जंगली तो वो पहले ही था। आस्ती से इसकी उंगलियों को अपने हाथों की कैद से आज़ाद करते इसकी नाजुक कमर में दोनों बाजू डाले और उसे खींचकर अपने सीने से लगाया। घबराई हुई हानिया ने इसकी कमर पर अपने नाखून गाड़ दिए। इसकी मज़ाहमत करने पर वो और शिद्दतों पर उतर आया था। आखिर उसने थक कर मज़ाहमत तर्क कर दी तो वो मुस्कुराकर सर उठाए उसे देखने लगा। हानिया दबदबाई आंखों से उसे देखने लगी। मैडम, गिन गिन कर बदले लेने हैं आपसे। सबके सामने जो थप्पड़ मारती थी ना, कसाईयों की तरह काटने की धमकी देती थी, 1000 किस्म की पाबंदियाँ लगाती थी, पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों को हंसाती थी, सब अल्लाह से ये तक का बदला होगा और इंतकाम काफ़ी हसीन होगा और इसका इख्तिताम 25 नन्हे फूलों पर होगा। इसकी बेतरतीब सांसें देखता वो मुस्कुराकर इससे दूर हुआ और शर्ट उठाकर पहनता और बेड से नीचे उतरा। मैंने भी अपने दोस्त से वादा किया था कि जब भी हमें वो कमीना इंसान मिलेगा जिसने गन पॉइंट पर मुझसे साइन लिए थे, उसे मिलकर मारेंगे। वो इसकी आंखों में गुस्सा देखकर बात मुकम्मल करती खामोश हो गई। खुश फहमी आंख मारकर वो कमरे से बाहर निकला। कुछ देर बाद इसके रूम में मिसेस शमीम नाश्ता लेकर आ गई और ख़ुद उसे मोहब्बत नाश्ता करवाने लगी। वो इन्हें देखती सोच रही थी कि बहरी को कितने प्यारे माँ बाप मिल गए। हम तुम्हारे भी माँ बाप हैं। हमें एक बेटी की शुरू दिन से ख्वाहिश थी जो अब तुम्हारी सूरत में पूरी हुई। इसी पल इसकी आंखों में दिखते इसके माथे पर बूसा देते मिसेस शमीम बोली। हानिया रोती इनके सीने से लगी। उसे अपने बाप की याद आई जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। इसकी सिसकियों और चीखों पर बहजाद भागता हुआ रूम में आया और बमुश्किल उसे संभालते उसे आराम की दवाई देकर सुला दिया। कुछ देर इसके पास बैठकर उसे देखते हुए वो एक फैसला लेता उठा और ऑफिस चला गया जो अब तक इसके डैड ने संभाला हुआ था। आज रात के जहाँ उसे बेसब्री से इंतजार था वहीं वो दो वजूद और भी थे जिन्हें पल का भी सुकून मैसर नहीं था। वो दोनों एक खाने में चेयर पर बैठे बंधे हुए थे। अचानक दरवाज़ा खुला और एक के बाद 3 वजूद अंदर दाखिल हुए। जहान ने हाथ
बढ़ा कर तहखाने में लगे वाहिद बल्ब को रोशन किया और दोनों की बेचैन और खौफजदा नजरें इन चेहरों की तरफ उठी। बॉडीगार्ड अब्दुल्ला और करीम। वो बारी बारी बुड़बुड़ाए। हारिस खान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन था, तुम दोनों मुझे ज़रूर बचाओगे, वो खुश होते हुए बोले। इनके लहजे में ज़िंदगी की खनक थी। ऐसा क्यों? महजाब ने सर खुजाते पूछा। क्योंकि मुझे तुम दोनों पर ईमान था। वो हंस पड़े। इस मान के बारे में क्या कहते हो जो हदीद खान को तुम पर था? हारिस खान बजदार ने फनकार का पूछा। जो एक मासूम लड़की को तुम पर था, जो इज्जत से जॉब करती, तुम्हारे रूम में सिर्फ सर्विस करने आई थी। जहान और जहांगीर ने पूछा। कौन हो तुम तीनों? आलिया के बारे में तो किसी को नहीं मालूम था, फिर इन्हें कैसे मालूम हो गया? हारिस साहब खौफजदा होते इन तीनों को देखने लगे और कहीं करीम की मौजूदगी पर उलझ गए थे। तहखाने की फिजा में तीनों के बुलंद बांग कह के इनकी सांसें नोचने के लिए काफ़ी थे। उस बहन का भाई जहान उर्फ अब्दुल्ला, उसने कहते हुए अपना कोट उतारा। हारिस खान की नजरें पाक फौज के यूनिफॉर्म पर अटक गई। उसने सदमे से फिर करीम की तरफ देखा। फवाद चौहान की भी वहशत भरी नजरें उठी। इसी मासूम व बेकसूर का छोटा भाई जहांगीर उर्फ करीम, उसने भी कोट उतारा और दोनों की फटी आंखें इसकी पुलिस की वर्दी पर अटक गईं। तो तुम कौन हो? अब दोनों की नजरें मुस्कुराते हुए बहदार पर अटक गईं। वो दोनों इसके दाएं बाएं खड़े थे। मैं कौन हो सकता हूँ चचा जान? मैं क्या तारफ करवाऊँ? जब एक चचा को अपने भतीजे की पहचान ना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? ये बताऊँ कि मैं बहदार हदीद खान हूँ, जिसके बाप को सोते हुए इसके भाई ने कत्ल किया था? या ये बताऊं कि जिसकी माँ को बेदर्दी से मारा था? ये तारफ दूं कि जिसकी मासूम चच्ची को इसके शौहर ने इसके बच्चे समेत मार डाला था? कौन सा तारफ दूं? बेबसी से कहता अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इस पर अटकाते, इनमें से लैंस निकालते इनकी सांसें बंद कर गया था। स्याह काली आंखों के पीछे ओशन ब्लू आंखें देखते वो मुंह फाड़े उसे देख रहे थे, जो देखते ही देखते बॉडीगार्ड से बहराम बहजदाद मलिक में बदल गया था। बहराम कौन है? इसकी खौफजदा दहशत से कांपती आवाज गूंजी। बहराम वो जो बेगुनाह है, बहजाद की जगह मारा गया था। बहजाद वो है जो इसका बदला लेने के लिए दूसरा जन्म लेकर उठा है। घबरा कर कहते वो इन दोनों की जान खुश कर गया। मुझे माफ कर दो बैरी, मैं तुम्हारा चचा हूँ ना? हारिस गिड़गिड़ा कर बोला। मैंने क्या किया है? ये सब तो तुम्हारे चचा का प्लान था। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे जाने दो। फवाद चौहान फूट फूट कर अलग रोने लगे। बकवास बंद करो, ये तुम्हारा और बर्क डायनल का प्लान था। तुम दोनों ने मेरा सर खाया हुआ था, हारिस ने इकरार कर कहा और फिर दोनों आपस में चीखने धारने लगे। तब तक वो तीनों अपनी गन्स लोड करने लगे। जहांगीर बहदार ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, जिसने एक सफेद कागज और पेन उसे थमाया। वो लेते ही इन तीनों ने आपस में उलझते हारिस खान और फवाद चौहान की टांगों का निशाना लेते अगले ही लम्हे फायर किया। फायर की आवाज के साथ ही इन दोनों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठी। बैरी माफ कर दो बैरी, भाई साहब होते तो मुझे माफ कर देते, मैं इनका लाडला भाई था। हारिस खान फवाद की आंखों पर मिन्नत समाज पर उतर आया। वो मचल कर खुद को छुड़वाते चीखने लगा, पर इस वीराने में बने फ्लैट के तहखाने में कौन सुनता? सदा अफसोस पर नहीं। वो तमस्करों से इनके भीगे चेहरे को देखने लगा, जिस पर मौत की वहशत फैली हुई थी। लिखो यहाँ कि तुम अपने साथियों के साथ पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हो, अब कभी वापस नहीं आओगे पाकिस्तान। और हानिया के बारे में भी लिखो कि खुश रहना अपनी ज़िंदगी में और माफ़ी मांग लो उससे, ये एहसान कर रहा हूँ एक और। उसने गरार कर कहा और जहांगीर ने इसका एक हाथ खोला। जहाँ खान नजरों से हैवानों को गिड़गिड़ाते देख रहा था, जब धूल पड़ी थी तो कैसे आंसू बहा रहे थे। हारिस खान अपनी बेटी के हालात का अंदाजा करते जल्दी जल्दी लिखने लगे, और जब उन्होंने लिख लिया तो बहजाद ने वो चिट उठाकर अपनी जेब में रख ली। शुक्रिया चाचा साहब, अब मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी और मेरी इस तरह की आंखों में सिर्फ आपके लिए नफरत होगी। बहजाद के कहने के बाद बारी बारी तीनों ने एक दूसरे को देखा। इनके सामने अपनों के चेहरे घूम गए और साथ ही उन्होंने अपने पिस्टल का सारा मैगजीन बारी बारी दोनों के सीनों में उतार दिया। वो एक चीज
चीख के साथ बेजान होते कुर्सी की पुष्ट पर ढक गए। बहजाद ने ओशन ब्लू आंखों से बेसाख्त निकल आने वाला आंसू पूंछकर बगैर इनकी तरफ देख के पुष्ट कर ली। इनकी लाश सुबह भी सड़क पर मिलनी चाहिए। दोनों की बुराई का किस्सा खत्म। अब कोई हारिस खान नहीं, ना ही कोई फवाद चौहान। वो बगैर एक पल भी रुके वहां से निकलता चला गया। मुझे पता है आप सब मुझसे नाराज होंगे, पर मैं मजबूर था, मुझे ये करना पड़ा। वो आसमान की तरफ देखता कहकर वहां से खड़ी अपनी गाड़ी में बैठा। चंद पल गहरे गहरे सांस भरे। जान और जंगीर के कंधे पर इन दोनों की लाशें देखते हुए मुस्कुराता हुआ सुकून से गाड़ी लेकर वहां से निकलता चला गया। वो शुक्रिया का मैसेज आईजी सरफराज और ब्रिगेड मोहम्मद यूसुफ को भेजना नहीं भूला था, जिन्होंने अपने फर्ज को निभाते बुराई को मिटाने में पल पल इसका साथ दिया था। घर जाकर फ्रेश होते वो हनिया के कमरे में आया और हारिस खान और फवाद चौहान की दहशतगर्दों के साथ जेल तोड़कर भागने की न्यूज़ दिखाते इसने वो चिट हानिया को थमाई, जिसे पढ़कर उसने नफरत से दूर फेंक दिया। मुझे नफरत है उस दहशतगर्द से जिसे मासूमों को मारते हुए जरा एहसास नहीं होता। मैं दुआ करूंगी कि वो जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। वो रोते हुए बहदार के सीने में छुप गई और उसने आसूदगी से मुस्कुराते उसे खुद में सुमो लिया। मोहब्बत कभी नहीं आती, पता नहीं ये बात कैसे हारिस खान भूल गया। वो मोहब्बत लाजमी नहीं एक लड़की की लड़के से ही हो। इस मोहब्बत के हजार रूप होते हैं, जैसे जहान जंगीर की अपनी मासूम बेगुनाह बहन से, हादी चौहान की अपनी माँ और दोस्त से, रुमीसा की अपने माँ बाप से, जफर मलिक की अपने बेटे से, और पाक मिट्टी के इस दोस्त बहादुर खान की अपने खानदान से। तभी तो मोहब्बत सतरंगी है। अब ठीक है, वो मुस्कुराती हुई हाथ झाड़कर बोली। काउच पर बैठे हादी ने नजरें मोबाइल से हटाकर उसे देखा और फिर बेड को। बीच में अभी भी सिलवटें हैं, गौर से देखो और ठीक करो। सख्ती से घूरते वो बोला। रुमीसा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भेजी। आदि आप कब से तंग कर रहे हैं? पहले ये भारी ड्रेस जबरदस्ती पहनवाया, फिर तैयार करवाया, अब बार बार बेडशीट को दुरुस्त करवा रहे हैं। वो खफकी से बोलती, बेड पर घुटनों के बल चढ़कर हथेलियों से बीच की सलवटें दूर करने लगी, जिस पर फिर दूसरी तरफ से फिर कुछ सलवटें पड़ गई। उफ, मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, वो कहकर बेड पर लेट गई। वो मुस्कुरा दिया इसकी अपनी खामी का इतराफ करने पर। उसने ना झिझक महसूस की, ना ही झूठ बोल दे, सिर्फ उसे खुश करने के लिए कोई तकदो की। यही खालिस रिश्ता तो चाहता था वो रुमीसा से, पर वो नादान इस सब का मकसद समझे तो ना। अपना फ्लैट बेचकर वो पेरिस आ गया था हमेशा के लिए रुमीसा के साथ। इसके बाप ने उससे मिलने की ख्वाहिश की तो उसने मना करते वकील से कह दिया कि बोल दो वो चला गया पाकिस्तान से। जिस तरह सारी जिंदगी उसे तड़पाया था, दौलत को हासिल करने के लिए इसकी माँ को मारा था, उस बेगुनाह बॉडीगार्ड को मारा। बिजनेस की आड़ में इसका बाप एक स्मगल था, उसे हराम खिलाता था। वो कैसे जाता है इस इंसान के पास, कैसे उसे माफ कर देता? अगर माफ करता भी तो वो जानता था उसे बहुत वक्त लगेगा इन्हें माफ करने में, क्योंकि सिर्फ एक जख्म नहीं दिए थे उन्होंने हादी चौहान की हस्ती को मिट्टी में मिला दिया था। एक रिश्ता नहीं, इससे इसका सब कुछ छीन लिया था। उसे इसकी दोस्त के सामने नजरें उठाने के लायक नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो चुपचाप रुमीसा को लेकर यहाँ आ गया था। अब जब तक इसके जख्म नहीं भरते उसने सोच लिया था वो वापस नहीं जाएगा। कुछ दिन की भाग दौड़ के बाद उसे इसकी जहानत को देखते एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी और इसने एक छोटा सा घर भी ले लिया था यहाँ, जहाँ कुछ दिन इन्हें सेटिंग में लगे। आज से वो अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने वाला था, एक खुशहाल फैमिली की, जिसमें रुमीसा सिर्फ होगी और हादी चौहान होगा। वह ना दर्द होंगे ना जख्म, बस खुशियां होंगी। अब दौलत की हौस कहीं नहीं होगी, ना ही माजी की तलखियां याद होंगी। पाकिस्तान में अब इसका सिर्फ एक रिश्ता बचा था, वो दिल का, और वो दिल थी इसकी दोस्त जिसका नाम हानिया खान था। इसकी शादी बहराम मलिक से इसके डैड ने खुद करवाई थी, जिसका उसे रुमीसा ने बताया था, और ये भी कि बहराम मलिक ही बैरी है और बैरी हानिया का बॉडीगार्ड है। कितने लम्हे तो वो कुछ बोल ही नहीं सका। बॉडीगार्ड ही बैरी था जिसके सामने वो इसकी स्टॉक को हर्ट करता था, तो वो कैसे खामोश रह पाता था? क्लब में वो कैसे पागल होता इस पर झपटा था? कैसा जुनून था इसकी आंखों में हानिया की हालत पर, वो क्यों नहीं समझा था ये?
یہ باڈی گارڈ نہیں، ایک بروپیا تھا۔ موبائل سائلنٹ کرتے وہ اٹھا اور مسکراتا ہوا ڈور لاک کر کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر پاؤں نیچے لٹکائے سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور بازو خفگی سے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے مسکراتا کھڑا ہو گیا۔ میرون میکسی میں نفیس سی ڈائمنڈ کی جوتی پہنے جو ہادی نے اسے اپنے پیسوں سے لے کر دی تھی، وہ اپنے کمسن حسن سے انجام لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کی جائیداد میں اس کا کچھ نہیں تھا، اور جو آفس میں کام وہ کرتا تھا اس کے حساب سے سیلری اس کے اکاؤنٹ میں جمع کی جاتی تھی، جس کا فواد صاحب پائی پائی کا حساب رکھتے تھے۔ ساری تلخ یادوں کو پیچھے دھکیلتے وہ اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہارٹ بیٹ۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ بولیے؟ رومی نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کھینچ کر اپنے ہارس میں لے لیا۔ ہادی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یکدم گھبرائی۔ آج میں اپنی زندگی کی شروعات کرنا جا رہا ہوں تمہارے سنگ، کیا اس میں تم میرا ساتھ دو گی؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتے ہادی نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ رمیشہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں میں سوال دیکھتے اس کی پلکیں لہج کر گالوں پر سایہ فگن ہو گئی اور رخساروں پر شرم سے لالی بکھر گئی۔ ہمت کرتے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھایا اور اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ہادی مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، جس پر وہ سمٹ سی گئی۔ لبوں پر بکھری شرمگین مسکراہٹ، اس کے گالوں کے خوبصورت ڈمپل ہادی کی نظروں کو بے چین کر گئے۔ اس نے اپنے دل کی آواز پر لبک کہتے ہوئے انگلیوں سے اس کے گالوں پر موجود ڈمپلز کو چھوا، جس پر وہ چھوئی موئی سی ہو گئی۔ ہادی اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ ہمارا ماضی جو بھی رہا ہو وہ ہمارا ماضی تھا رمیشہ، اور ماضی کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آگے ہماری زندگی میں مجھ سے مخلص رہو گی اور مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ پرامیس کرو اپنے ہادی سے تم اس کا تا حیات ساتھ دو گی، ایک مخلص بیوی بن کر، اور یہی وعدہ میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ رمیشہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اپنی ہادی سے کہ میں اس کی مخلص بیوی بن کر زندگی گزاروں گی، کبھی ان سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، ہمیشہ ان کے ساتھ سکھ دکھ کی ساتھی رہوں گی، انہیں اپنی طرف سے زندگی کی ہر خوشی دوں گی، اور میں آپ سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں صرف میں ہی رہوں گی، اور چاہے میں بوڑھی ہو جاؤں آپ پھر بھی مجھے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس لاتے رہیں گے، اگر کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہادی نے اس کی بات اچک کر کہا، جس پر رمیشہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ پیار کرتی ہو؟ اس کے بال سنواتے ناک کی نوک کو انگلی سے چھو کر پوچھا۔ وہ سر جھکا کر شرماتی ہوئی صحبت میں ہلا گئی۔ بہت۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز سے چاکلیٹ کا پیکٹ نکالا اور اس کے آگے کیا۔ چاکلیٹ کی خوشبو پاتی وہ ایک دم آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی اور پھر اس کی شریر نظریں دیکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ لو۔ اس نے ایک چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جلدی پیکنگ کی کیس سے آزاد کروا کر چاکلیٹ منہ میں ڈالی کہ چاکلیٹ پر لپٹتا خوبصورت سا پینڈنٹ پا کر اس نے خوشی سے اسے دیکھا۔ آئی لو یو، آپ کو معلوم ہے مجھے سرپرائز بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے پینڈنٹ نکال کر دیکھتی بولی۔ ہادی نے پینڈنٹ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے گردن میں پہنایا۔ ہارٹ بیٹ۔ اب ہم تو تمہیں ہر انداز سے سرپرائز کرتے رہیں گے۔ اس نے جھک کر اس کی چاکلیٹ سے بائٹ لیا۔ وہ منہ بنا کر اس کی گھورتی آنکھوں کو دیکھ کر کھلکھلائی، جس پر ہادی بھی مسکرایا۔ ہادی نے یکدم اس کے منہ کی طرف بڑھتی چاکلیٹ کو اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ رمیشہ تڑپ اٹھی۔ کیوں، میں نے تو ابھی کھائی بھی نہیں ہادی، وہ معصوم صورت بنا کر بولی۔ میرے پاس ہے۔ ہادی نے اس کی کمر میں دونوں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی پال اس کے سینے سے ٹکرائی۔ کہاں ہے؟ اسے کندھوں پر پکڑتے اس کی ہاتھ خالی دیکھ کر رمیشہ نے دبدبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہادی اس کی نظروں کا ارتکاز پیچھے میز پر پڑی چاکلیٹ کی طرف دیکھ کر اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اس کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ ڈیپ ریڈ لپسٹک نے اس کے لبوں کے خوبصورت کٹاؤ کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ ہادی کا ہاتھ اس کے گھنے سیاہ بالوں میں سرک کر پیچھے کی طرف آیا اور رمیشہ کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری پکڑ میں لے چکا تھا۔ یہ پل، میں اور یہ چاکلیٹ سب تمہارے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں سے الجھتے ہادی اس کے بکھرے وجود کو
बाहों में समेटे इसके कान में सरगोशी करता बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी। हादी वो अंधेरे में इसके सीने पर मुंह छुपाया इसके धमकते लम्स को अपनी गर्दन पर महसूस करती सिमट सी गई। हादी ने अपनी उंगली इसके लहसते भीगे लबों पर रखी और इसका सर अपने सीने पर रख दिया। पेरिस की ये हसीन राह रफ्ता रफ्ता गहरी होती गई और इसके साथ ही हादी चौहान की शिद्दतें अपनी हार्ट बीट के लिए बढ़ती गई। हवाओं में सुकून की लहर दौड़ गई। फिजा में दोनों की सांसें बिखरने के साथ कहीं दूर किसी ने वायलिन की धुन छेड़ी, जिसे सुनकर इन दोनों के लबों पर एक आसूदा मुस्कुराहट बिखर गई। वो उसके कानों में सरगोशियां करते से ये यकीन दिला रहा था कि अब कोई तल्ख याद या बुरा वक्त नहीं आएगा इस पर, और वो हमेशा इसकी ठंडी छांव तले रहेगी, इसकी हार्ट बीट बनकर। 5 माह बाद हेजल ब्राउन आंखों के शहर में वो लबों पर पुरसरार मुस्कुराहट सजाता अपनी पैकिंग कर रहा था। मैंने कहा था मैं आऊँगा अंजलि, और मैं आ रहा हूँ डार्लिंग। भारी गंभीर लहजे में खुद कलामी करते उसने कंधे पर बैग रखा और क्वार्टर का डोर लॉक करता वहां से निकला। ब्रिगेड मोहम्मद यूसुफ से मीटिंग के बाद वो अब अपने दूसरे मिशन पर जा रहा था, जहाँ की मालूमात हासिल करते उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी एक नफरत में सांस लेते वजूद की, और इसने महसूस किया था जिंदगी उसे खुद वापस वहां ले जा रही है जहां से कहानी शुरू हुई थी, इसकी अंजलीन के पास, जिसकी हेजल बरून आंखें सफेद सफात पर इन स्याह आंखों को याद करती उतनी नफरत की कहानी लिखती थी। और ये पुरसरार सी कहानी कई पुरसरार से राज खोलने वाली थी। आज इसकी रुखसती थी और उससे रुखसत होकर बहजाद के कमरे में जाना था। रुखसती की तरकीब में सिर्फ अपने ही शामिल थे। कल इन दोनों के निकाह की अनाउंसमेंट करनी थी, जिसके लिए एक वसी पैमाने पर वलीमे की तरकीब मुनक़द करने की तैयारी की थी जफर मलिक ने। चारों तरफ बिखरे खुशरंग माहौल और खनकदार कहकों में वो स्टेज पर इस मगरूर शख्स के साथ सुर्ख भारी घूंघट में सर झुकाए इसकी मजबूत उंगलियों में अपनी नाजुक उंगलियों को महसूस करती शर्माई सी छुई मुई सी बैठी थी। वो फतह याब हुआ था। उसने बगैर झुके दौलत को फतह किया था, बल्कि अपनी स्टाक को भी फिर से फतह कर लिया था। बहरिए अनवर अपनी फैमिली और मौलवी साहब की फैमिली समेत वहां मौजूद था। उसने इन्हें ये बताया था कि ये बहजाद है। बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आज्ञा मेरे यार। वो अपनी उंगलियों में मौजूद इसकी रुई जैसी उंगलियों पर हल्का सा दबाव देता उठ खड़ा हुआ। बारी बारी सबसे मिलता अनवर को खुद में भेज गया। मौलवी साहब और इनकी बेगम ने उसे और उसकी बीवी को दिल से दुआएं दी, खुशियों की, जिस पर बहजाद और हानिया ने दिल से आमीन कहा। हानिया अनवर का सोचती मुस्कुराहट लबों में कुचल गई। कितनी हसीन यादें थी इसकी बॉडीगार्ड के साथ। बॉडीगार्ड तानिया आईजी सरफराज के साथ स्याह मैक्सी में वहां मौजूद थी और उसे हाथ हिलाती अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती पास आई। चुड़ैल हानिया चमकती एकदम घूंघट उलट कर उसे देखने लगी। जहां इसके घूंघट उल्टाने पर मिसेस शमीम मुस्कुराई थी, वहीं बहजाद और तानिया ने बात समझकर कहका लगाया। तानिया को शरारत सूझी। उसने झुककर बहजाद के कान में कुछ कहा। हानिया तो अपने बॉडीगार्ड के इतने करीब उसे पाती चीख उठी। क्या कहा उसने? वालमैन बगैर आसपास की परवाह किए वो बहराम बहजाद मलिक को काला से पकड़े चिल्लाकर पूछने लगी। मैडम। उसने सब पर सरसरी सी नजर डालकर अपनी मैडम की जानिब रुख किया, जो आंखों में अंगारे लिए उसे देख रही थी। शट अप। उसके कॉलर को झटका देती वो जनूनी हो गई। थैंक यू मैडम। आंख मारते उसने इसकी कमर में बाजू डाला और खुद से करीब कर लिया। जहाँ खट इनकी तस्वीरें बनना शुरू हो गई थी, जब वहीं फिजा में सबके जानदार कह के गूंज उठे थे। वेल यू मर्डर मी। वो इसके सामने घुटनों के बल बैठा और प्लास्टिक की रिंग को इसके सामने पेश किया। मिसेस शमीम मलिक और मिस्टर जफर इन दोनों की हरकतों पर हंसकर एक दूसरे को देखने लगे। है ना अपना बहराम? उन्होंने पूछा। मिसेस शमीम सर हिलाती अपनी नीब आंखें पूछने लगी। हानिया ने जताने वाली नजरों से तानिया को देखा और मुस्कुरा कर बहजाद की तरफ मुड़ी। यस आई विल मर्डर यू। खिलखिलाते हुए उसने हाथ आगे किया, जिसे थाम कर अपने लबों से लगाते हुए उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया और इसकी उंगली में प्लास्टिक की रिंग पहनाई। फर्क सिर्फ ये था कि इस रिंग में अब ऊपर छोटी सी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। उसने उठकर इसकी नीम आंखें देखते इसके माथे पर लब रखे। थोड़ा रहम कर लिया करो। इतनी सारी इंसल्ट पर वो शिकवा करता बोला।
ہانیہ نے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا. میں نے تمہاری منت نہیں کی تھی کہ حق مہر میں اپنی زندگی اور باڈی کارڈ لکھ دو. اب بھگتو. واپس چہرے پر گھونگھٹ کرتے وہ سب کو پھر سے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی. جہانگیر جو بے خود کھڑا اسٹیج پر منہ بسوڑے کھڑی بلیک میکسی میں تانیہ کو دیکھ رہا تھا کندھے پر ہاتھ پڑنے پر مڑا. کہاں؟ جہان کو بیگ کندھے پر لٹکائے دیکھ کر وہ پریشان سب پوچھنے لگا. 2 ماہ پہلے ہی ان دونوں کے پروموشن ہوئے تھے. کیپٹن جہانگیر میجر جہان بن گیا تھا اور انسپکٹر جہانگیر اب ایس پی جہانگیر تھا. کوئی انتظار کر رہا ہے، اس نے مسکرا کر کہا. جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں جنون کی انتہا دیکھی. پاگل ہو گیا ہے، وہ نفرت کی راہ بچھائے بیٹھی ہے. اس نے جیسے جتایا پر اسے کہاں فرق پڑنے والا تھا. اپنا خیال رکھنا، میں رابطے میں رہوں گا، وہ مسکرا کر کہتا. اس کا کندھا تھپتھپا کر سامنے بہزاد کی طرف مسکرا کر دیکھتا آگے بڑھ گیا اور جہانگیر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا جب تک کہ وہ نظر سے اوجھل نہ ہو گیا. رخصتی کا شور مچا جس پر سب مسکراتے ہوئے ان کی دامنی خوشیوں کی دعائیں دینے لگے. مسز شمیم اور مسٹر ظفر آمین کہتے رہے. منہ دکھائی میں کیا ہے؟ ہانیہ نے سرگوشی میں پوچھا. سیکرٹ ہے. بہزاد لبوں پر مسکراہٹ سجائے بولا. باڈی گارڈ. اس نے غصے سے جھٹکا. یس میڈم. وہ فل فارم میں آ گیا. شٹ اپ. ہانیہ نے دانت کھچکاتے رات کا سارا حساب کتاب کرنے کا سوچا. تھینک یو میڈم. وہ جانتا تھا اس وقت وہ جتنی خونخوار بن رہی تھی اس کے قریب جاتی اس کی شدتوں پر سہم جاتی تھی. وہ اس کی حالت غیر کرنے کی پوری تیاری کیے بیٹھا تھا. اب شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ دوسری طرف کھڑی ہانیہ مسلسل خود پر جہانگیر کی باروں نظروں کی تپش محسوس کرتی مٹھیاں بھیج گئی جس پر جہانگیر کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ اپنی چھاپ دکھاتی غائب ہو گئی. اس کے قدم بہزاد کی طرف بڑھے جہاں خوشیاں اس کی منتظر تھیں. میری تو ہنسی نہیں رک رہی ہادی. وہ کھلکھلاتی ہوئی بیڈ پر ہادی کے ساتھ بیٹھی جہانگیر کی بھیجی گئی ویڈیو LED پر دیکھتی اس انوکھی رخصتی پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. ہادی بھی ہانیہ کو بہرام بہزاد کا کالر پکڑے دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا. کتنے مزے کا ہے نا. رومیسا نے ویڈیو دیکھتے ہادی کے کندھے پر سر رکھا. ہادی نے اس کی سر پر بوسہ دیتے سر ہلایا. آپ نے ہانیہ سے معافی نہیں مانگی؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتی پوچھنے لگی پر اصل مقصد اسے یاد دلانا تھا. ہادی نے نفی میں سر ہلایا. کب ملیں گے؟ نیم آنکھوں سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر اور بہرام ملک کے خیال کو یاد کرتی بولی. جلد ہی ملیں گے. ہادی کو ماننا پڑ رہا تھا ملک سے دور رہنا بہت مشکل ہے. جہان جہانگیر دونوں بھائی اپنی معصوم بہن کا بدلہ لیے اپنے فرض کے سفر پر نکل چکے تھے. ہادی دیا خیر میں بیٹھا فیصلہ کر رہا تھا کہ وہ جلد سے جلد پاکستان واپس لوٹے گا کیونکہ جتنا سکون اپنے ملک میں تھا اتنا پردیس میں جہاں اس نے رومیسا سے وعدہ کیا تھا وہ جلد ہی لوٹیں گے کیونکہ اس کی پیاری سی بیوی اس کے جاب پر جانے کے بعد اکیلی اور اداس رہنے لگی تھی اور یہ سب کہاں دیکھ سکتا تھا. ہادی اس نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اس کی بیوی کی خوشی میں اس کی خوشی ہوگی. آخر کیوں ہر بار عورت ہی قربانی دے؟ پہلے مرد ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قربانی لیتے ہیں اور پھر اچانک بڑے حادثات ہو جاتے ہیں جن میں بھی قربانی عورت کو دینی پڑتی ہے. پر وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. اس کی بیوی کی خوشی پاکستان میں رہنے کی تھی تو وہ ضرور جائے گا پاکستان اور وہیں اپنے آنے والے بچوں کی پرورش کرے گا، وہ بھی بہتر سے بہترین. دوسری طرف تانیہ جہانگیر کی بے باک نظروں کا سوچتی تلملائی ہوئی تھی. سمجھتا کیا ہے بندر خود کو ایکس رے کر رہا تھا جیسے. وہ بڑبڑاتی گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی پر آنکھوں کے سامنے وہی گھوم رہا تھا جس کے جذبوں سے چور آنکھیں اسے بے چین کر گئی تھی. اللہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے. اپنی آنکھیں مسلتی وہ کھسک کر تکیے میں منہ دے کر لیٹ گئی پر چین کہاں تھا. وہ کسمسائی اور دائیں بائیں کروٹیں لیتی اپنا دھیان اس سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی پر یہ ناممکنات میں سے لگ رہا تھا. دفعہ اسے فنکشن میں لی گئی سیلفیاں یاد آئیں. اوہ شکر. اس نے فوراً موبائل اٹھایا اور اب بہرام کے ساتھ لی گئی مختلف فنی پوز میں سیلفیاں دیکھتی کھلکھلا رہی تھی جن میں پیچھے جلی ہوئی ہنی کی شکل دیکھ کر اسے اور مزہ آ رہا تھا. اسے ماننا پڑ رہا تھا کہ وہ کافی
पॉजिटिव थी अपने बैरी के मामले में। दफ़ा एक सेल्फी को देखती वो ठटकी, या अल्लाह ये मेरे इतने करीब भी आ चुका था और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। वो सेल्फी में जहांगीर को बिल्कुल अपने पीछे खड़ा देखती हक्का बक्का कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, जबकि वो बड़े हक से मुस्कुराता इसके चेहरे को देख रहा था और इस बेवकूफ़ ने ध्यान ही नहीं दिया, इतना मगन होकर सेल्फी निकाल रही थी। इडियट नहीं जानता क्या कि मैं आईजी की बेटी हूँ, बेवकूफ़ कहीं का मुझ पर लाइन मार रहा है। वो तलमिला कर बुड़बुड़ाई और लब भेजकर मोबाइल बेड पर टच दिया। मुझे सो जाना चाहिए, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है आई थिंक। वो बुड़बुड़ा कर लेटी और कुछ देर करवट लेती आहिस्ता से नज़रें रूम में घुमाने के बाद दिल के हाथों मजबूर होकर मोबाइल फिर से उठाया और ऑन करते वही सेल्फी देखकर खिलखिला उठी। मैं डर किससे रही हूँ, वो अपने चोरों की तरह मोबाइल उठाकर देखने पर कहकर लगा उठी। अभी हस्ती उसे देख ही रही थी कि अनजाने नंबर से मैसेज आया। उसने ओपन करके देखा तो वहाँ लिखा पढ़कर साख रह गई। कैसी लगी फिर हमारी जोड़ी, मुझ पर जवाब दें ताकि ये आपका पहली नज़र का आशिक आपके दरबार पर हाजिरी दे। फ़िकत आपका होने वाला बॉडीगार्ड एसपी जहांगीर। तानिया ने घबरा कर आसपास देखा पर इस हालनुमा रूम में इसके अलावा कोई नहीं था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता बेतरतीब धड़कनों को संभालती मोबाइल ऑफ किए छुपा गई। उफ अल्लाह, तो क्या उसने मेरी बॉडीगार्ड वाली बातें सुनी थी जो मैंने डैड से कही थी? उसे भी बॉडीगार्ड चाहिए। नीम हथेलियों को आपस में रगड़ती हुई सोचने लगी और फिर अपनी हालत पर नजरें डालती हंस पड़ी। मैं बहुत खतरनाक हूँ मिस्टर बॉडीगार्ड, संभल कर आना। उसे बुड़बुड़ा कर मुंह पर तकिया रख लिया। कुछ ही देर में इसकी किलकिलाहट रूम की फिजा में गूंज उठी। कुछ माह बाद कोट हाथ में थामे वो बिल्कुल खाली जेबें लिए रूम में दाखिल हुआ। रुमीसा तो नहीं थी पर तानिया इसकी सारी जेबें खाली कर गई थी। वो दरवाज़ा लॉक करता रूम में दाखिल हुआ और नजरें सीधा फूलों से सजे बेड पर गई जहां वो दुश्मन जान घूंघट डाले बैठी थी। बहजाद को झटका लगा कि वो ऐसे इतने आराम से कैसे इसके लिए बैठ सकती है। इसने तो बहुत कुछ की तवक्को कर ली थी, पर ये खुशगवार तब्दीली भी थी। खैर सुर्ख फूलों और मोमबत्तियों से सजे रूम में मोमबत्ती से सजे रूम में इसका यूं बेड पर घूंघट किए बैठना इसके दिल को खुश कर गया। आर यू ओके स्ट्रा? काउच पर कोट फेंकते हुए वो गले से टाई निकालता इसके पास आकर बैठा। पर दूसरा झटका तो ये लगा जब वो खुद में समेट गई। यानी यार तुम ठीक हो? अपने शुरू उतारता वो उसे देख भी रहा था। शॉक्ड बेबी व्हाट हैपन? वो काफी हैरान होता सीधा होकर इसके सामने बैठा, पर वो टस से मस नहीं हुई वैसी ही सुकड़ी सिमटी घूंघट की ये पीछा झुकाए बैठी थी। बहजाद को तशवीश होने लगी। उसने गला खिंगारा और हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाना चाहा। मेरी मुंह दिखाई, मध्यम आवाज में उसने अपने मेहंदी से रंगी सुर्ख हथेली सामने फैलाई और कुछ पीछे खिसक गई। उसने हैरत से देखा और सर हिलाया। साइड दराज से स्ट्रॉबेरीज का पैकेट निकाल कर उसने शर्मीली दुल्हन की हथेली में रखा, जो सच में शर्मा रही थी या दौरे पड़े थे बच्ची पर। वो आस्ते से अंदर ले गई घूंघट में। बहजाद हैरान सा देखने लगा। उससे मुतवज्जो करते हाथ उठाकर घूंघट उठाना चाहे कि वो फिर पीछे खिसक गई। आई थिंक मुंह दिखाई देने के बाद घूंघट उठाने की इजाजत मिल जाती है मैडम, वो झुंझला कर बोला। हानिया ने मुस्कुराते नजरें उठाई। चुप कर जाएं जी प्लीज, मत भूलें कि आप अपनी जिंदगी मेरे हक महर में लिखवा चुके हैं। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है जी, वो शर्मीले अंदाज में कहती बहजाद को झटका दे गई। क्या तुम्हें याद था इस हालत में भी? वो हैरान होता बोला। उसे याद था जब उसने निकाह किया था, तब उसे खुद का होश नहीं था कि वो कहाँ बैठी है, फिर कैसे याद कर लिया इस एहसास वक्त में, वो भी इतने खतरनाक बात। जी नहीं, वो नफी करती अंदर ही अंदर स्ट्रॉबेरी खाती बोली। तो फिर किसने बताया? उसे
उलझ कर पूछा। जी वो अभी रहे। उन्होंने जाते हुए मुझे मैसेज किया था कि आप अपनी ज़िंदगी मेरे नाम कर चुके हैं, जिसका सबूत उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिया था, और ये भी कहा है कि अब मैं जिसे चाहूँ आपको तोड़ो मरोड़ो टुकड़े करूँ, अपनी डॉग्स को खिलाऊँ, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे पास आपकी ज़िंदगी का सबूत है कि वो मेरी है। इसकी बातें इन्हें खतरनाक खौफनाक इरादे सुनते बहजाद अपना कांपता दिल थाम गया। जहाँ मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, उसने दांत खिचखिचाए। फापे कुटना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ताश में सोचते उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे। ये इभी तो वही था ना जो कल तक उसे अपनी बेबी तक पहुंचाने में सारी मदद देता था, कैमरा हैंग तक का काम खुद अंजाम देता, टाइम सेट करना, उसे रूम तक पहुंचाना, सब उसने किया था, क्योंकि वो चाहता था दोनों मिल जाएं। पर ये जानते हुए कौन सी दुश्मनी निकाल कर गया था। हाथ तो लगा जा मेरे बच्चे, तुझे बताऊंगा ये 3 in 1 क्या चीज है। वो अहद बांधने लगा। मैंने तुम्हें कहा था मत कर शादी, बर्बादी है ये अब भुगत। दिमाग ने ठोकर मारी और वो बुलबुला उठा। तुम इसकी मत सुनो, तुमने बहुत अच्छा किया है उसे हासिल करके। वो तुम्हारी ही थी और निकाह एक खूबसूरत बंधन है जो तुमने बांधा है। ये तो मोहब्बत की शरारतें हैं। उस दिल ने समझाया। बहजाद के लब्बों पर मुस्कुराहट छा गई। बकवास करता है, तुम्हें उल्लू बना रहा है, फंसा रहा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत पछताने वाले हो, इसलिए अभी से कुछ रोब शोब रखो। बहजाद ने ऊपर की तरफ देखा। बकवास तुम कर रहे हो, उसे गलत रास्ते पर धकेल रहे हो। बाज आ जाओ, हमारे मामले में मत बोलो। दिल भड़क कर कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतर आया, जबकि बहजाद शिरजित था खुद पर। शायद ही वो दुनिया का पहला बंदा था जो अपने दिमाग दिल की झंक सुनता था, जिसमें तकलीफ दोनों तरफ से उसी ही होती थी, और वो दोनों भरपूर तरीके से लड़कर आखिर में हमें क्या कहते निकल जाते थे। हानिया ने मुकम्मल खामोशी देखते जरा सा घूंघट उठाकर उसे देखा तो झटके से सीधी हुई। इस पर फिर से दौरे पड़े थे। तुम ठीक हो वर्ल्डमैन? वो इस एहसास से वक्त खूबसूरत रात में उसे ऐसे दौरे पड़ते देखकर भड़क ही तो गई थी। वर्ल्डमैन, उसने आगे बढ़ते इसके बाजू को पकड़ कर हिलाया, पर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये तुम्हारा नहीं मेरा भी मामला है, और हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बकवास कहने की। वो अब चीखता इसके सर में दर्द कर रहा था, जबकि दिल चाह रहा था सर फाड़ दे। नहीं, अचानक हलक नीचे आवाज में धारा के हानिया उछल कर पीछे हुई। वर्ल्डमैन, लफंगे लोफर, कौन से दौरे पड़ गए हैं? मुझे नहीं रहना इस पागल से, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, वो चिल्लाई। वो बुलंद कहका लगा उठा। हानिया ने चौंक कर उसे कहका लगाते देखा। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये तो कोई पागल ही लग रहा है। मेरा बेरी गार्ड कहाँ गया? वो रोने जैसी हो गई। आ गई होश में, उतर गया बुखार जीजी का? उसने मोहब्बत से पूछा। दफा हो जाओ, निकलो, अभी पता नहीं कहाँ से बेवकूफ हो गए हो, वो गुस्से से बोली, जबकि बहजाद का हंसकर बुरा हाल हो रहा था। दफाता जल्दी कुड़कती हानिया को देखते वक्त खामोश हुआ। सर से उतारा भारी दुपट्टा जेवरात से सजी वो कोई हूर लग रही थी। इसकी सुर्ख डीप रंग में सजे पंखड़ियों से लब इसकी तश्कीनी को बढ़ाए गए। मजीद तो सितम नाक में पहनी नथ का मौजूद मोती जो शरारतें करता इसके लबों को छूकर इसकी प्यास को मजीद गहरा कर गया। थोड़ी पर मौजूद तो स्यातिल आज भी अपनी आबताब से चमकते से छूकर गुस्ताखियों पर उकसा रहे थे। इसकी छोटी सी फूलती नाक की नथें महराम बहसदार की लबों पर मुस्कुराहट का सबब बनी, तो दूसरी तरफ उसे यूं खामोशी से अपना जायजा लेती देखकर वह घबराई सी उंगलियां आपस में जोड़ तोड़ करती, लब दांतों में दबाकर नजरें झुकाए आने वाले लम्हात का सोचती बुखलाई हुई थी। इसके वजूद पर इसकी गहरी तपिश देती नजरों से कम कपाहट सी होने लगी थी। अस्ट्रा, जज्बात से चूर लहजे में उसे पुकारा और इसका हाथ थामना चाहा कि वह सहम कर दूर होती सुकड़ गई खुद में। ये आपका मुल्क बुखला कर कुछ न समझते हुए उसने साइड
साइड टेबल से दूध का गिलास उठाकर सामने कर दिया। उसे देखते बहजाद पहले चौंका, फिर बमुश्किल कहकर दबाते थाम गया, मुझे लगता है इसकी जरूरत तुम्हें है काफी। कहने के साथ ही यकदम आगे बढ़ते इसके सुर्ख लबों से गिलास लगा दिया कि वो फैली आंखों से देखती फड़फड़ा भी ना पाई। अभी कुछ देर पहले ही मिसेस शमीम उसे सबके साथ लाकर यहाँ बिठाए कुछ नसीहतें कुछ हदायत कर गई थी। इनमें ये दूध वाला गिलास भी तो इनके बेटे को पीना था, पर यहाँ तो केस ही उल्टा था। बहजाद की जगह खुद दूध का गिलास पिए अब उसे देख रही थी हैरत से। अब तुम बैरी उसे मुंह साफ करना चाहा कि उसने हाथ थाम कर रोक दिया और इसकी नथ के मोती को देखा जिस पर दूध की बूंदें टपकी थी। मैं भी पी लेता हूँ, मैंने खजी से कहते उसने इसकी थोड़ी सी पकड़ कर चेहरा ऊपर किया और आस्था से अपने थमकते लब उस मोती पर अटका दिए कि इस आफत पर हानिया ने मचल कर इसके चौड़े शोल्डर को थामा और बहजाद के हाथों की मजबूत उंगलियां घूमती इसकी गर्दन में आई और आस्था से भारी हार के हैंग को खोलने लगी। वो इसके लम्स पर सांसें रोके इसकी पेशानी से पेशानी टकराए बैठी थी, जबकि बहजाद मुस्कुराता अब इसके सारे जेवर इसके वजूद से अलग कर रहा था। बहुत खूबसूरत हो अस्रा, वो भारी सरगोशी में बोलते इसके नाक से नाक रगड़ने लगा और उसे अपने बाहों का हार इसकी गर्दन में डाल दिया। बहजाद ने बहुत नरमी से इसके बालों को पुष्ट पर फैला दिया। इसकी कमर में तंग हाथ डालते उसे खींच कर करीब किया और अपने सीने से लगाते हुए सरगोशी में पुकारा कि वो मूंदी आंखों से शर्म से अधमोई होती सिर्फ वो ही करती रह गई। प्यार करती है अपने बॉडीगार्ड से। वो इसके रुखसार पर नाक फेरता इसकी खुशबू को गहराई से सांसों में उतारता हुआ मदहोशी के आलम में खुमार आलूदा लहजे में पूछने लगा। हानिया झिपस कर समझ गई इसके सीने में। बैरी से करती हूँ ना, वो मध्यम शर्माई आवाज में मनमनाई। अक्सर मुख्तलिफ थी अपने रूप से या अपनी मोहब्बत को पाकर वो वाकई बदल गई थी। सारी तलखियां बह गई थी इसकी मोहब्बत में। बहजाद ने इसकी खामोशी पर आंखें खोलकर देखा तो वो आंखें मेची इसके हारस में इसके रहम करम पर थी। वो मुस्कुराता हुआ इसकी मछली की तरह खुलते बंद होते लबों पर अपने लब रख गया। एक हाथ इसकी कमर में तो दूसरा इसकी गर्दन में डाले वो इसके चेहरे पर झुका खुद को सैराब कर रहा था। वो निढाल सी इसकी शिद्दतों पर इसके बालों में उंगलियां फंसा गई, जबकि बहजाद अब इसके नकुश को पागलों की तरह छूकर महसूस कर रहा था जैसे सर्दियों का प्यासा हो। इसकी शिद्दतों के सामने वो बेबस सी हो गई थी। दफाता वो मचल कर गहरे सांस भरती से दूर हुई और इसकी तरफ पीठ किए बैठ गई। बहजाद मुस्कुराया और इसकी कमर में बाजू डालकर उसे करीब करते इसकी पीठ से बाल हटाए आगे एक साइड करता इसकी सफेद बेदाग गर्दन पर लब रखता उसे सख्त कर गया। हनी इसके बालों में गहरा सांस भरकर पुकारा पर वो कोई जवाब नहीं दे पाई। मैरी प्लीज, उसे हद से बढ़ते देखकर रुहानी आवाज में कहती मचल कर बेड से उतरी कि इसके गोद में पड़े सारे जेवर फूलों पर बिखर गए और वो बिखरे बाल बगैर दुपट्टे के मदहोश करते सरापे के साथ इसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ? उसने परेशान होकर इसकी रूहानी सूरत देखी और मोहब्बत से पूछा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। नौफल अदा कर ले शुक्राने के बैरी, देखो हम कैसे बिछड़े और कैसे मिले हैं। उंगलियां चटकाती हुई वो बोली। बहजाद अफसुदगी से मुस्कुराया। वो पहले ही अदा कर चुका हूँ जानम, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तो तुम्हारे साथ भी जरूर अदा करूंगा, क्योंकि इसके जितने शुक्र अदा किए जाए कम है। वो मुस्कुराता बेड से उठा। हानिया बैग कर कोई और पीछे को भागकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। ये देखते बहजाद कहकर लगा उठा, अभी सिर्फ टेलर देखते ये हाल है, आगे क्या होगा स्वीटहार्ट, मुझे डर है तुम्हें कुछ हो ही ना जाए। वो दुपट्टा उसे पकड़ाता इसकी छोटी सी नाक को छूकर बोला। वो क्या कहती नजरें झुकाकर बाथरूम में बंद हो गई। कुछ ही देर में दोनों वुजू किए नमाज पर खड़े होकर शुक्राने के नफल की नीयत बांधे साथ अपने रब से हम कलाम थे। ये एक तन्हाई खूबसूरत मनाज़र था जिसका हानिया खान और बहजाद खान को हमेशा से इंतजार था और आज वो अपनी मंजिल तक पहुंचे थे। आज अपने रब के शुक्र अदा करते अपनी जिंदगी की एक हसीन शुरुआत करने
जा रहे थे जिसकी एक पुरनूर सुबह होगी। इन्हें उम्मीद अपने रब पर यकीन था, इनका आगे का सफ़र खुशहाल गुजरेगा, अब कोई तलखियाँ रास्ते में नहीं आएंगी। महजाद से बैरी, बैरी से बहराम, बहराम से बजदार, बजदार से बॉडीगार्ड का सफ़र एक बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत था। उसने अपने माँ बाप के कातलों को इनके अंजाम तक पहुँचाया था, अपनी स्ट्रा को वापस पा लिया था। जफ़र साहब और मिसेस शमीम अपने बच्चों की खुशियों के लिए दुआ करते तहज्जुद पढ़ रहे थे, अपनी बहू और बेटी के साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दूसरी तरफ मेजर जहान अपने मिशन की तैयारियों में था और उसे यकीन था वो नफ़रत को हिराकर अपनी मोहब्बत से सिर्फ अंजलीन को पा लेगा। जहांगीर ट्राई कर रहा था कि अब खुद बॉडीगार्ड बनकर अपनी तानिया के पास जाए और उसके ख्वाब को पूरा करे, पर उसे ये भी अंदाज़ा था कि बड़ा ख्वार होना है। अब उसने मुंह दिखाए गिफ्ट कैसा लगा। उसे स्ट्रॉबेरी खाते देखकर वो पास आकर बैठा और हाथ पकड़कर पूछा, मैं वो अनोखी बीवी हूँ जिसके शौहर ने से मुंह दिखाए में स्ट्रॉबेरी का डब्बा गिफ्ट किया है। हाँ हाँ हाँ, वो खिलखिलाती हुई बोली। बहजाद मुस्कुराया, सारा दिन तो तुम स्ट्रॉबेरी खाती रहती हो, तो मैं और क्या करता। वो इसकी लिड को उंगली पर लपेट कर अपनी तरफ खींचते बोला, खाएं। हानिया ने फौरन स्ट्रॉबेरी सामने की। बहजाद ने थाम ली और अपने दांतों के बीच रखकर उसे खाने का इशारा दिया कि हनी की सांसें खुश्क पड़ गई। वो कभी इसकी मुतज़र आंखों में देखती तो कभी लबों के बीच रखी स्ट्रॉबेरी को। बहजाद ने घूरते हुए इसकी गोद से दूसरे उठाकर साइड टेबल पर रख दी और खुद इसके करीब होके वो जान बचाने की छोटी सी कोशिश करती बेड पर गिर गई। वो इसके बरक्स ये तो बहजाद के लिए बहुत आसानी हुई थी। वो मुस्कुराती आंखों से इसके सुर्ख अनार होते चेहरे को देखते इस पर झुक गया। मध्यम सी सांसें छोड़ी हानिया बेडशीट की मुट्ठी में जकड़कर आंखें मूंदी आहिस्ता से मुंह खोल गई। बहजाद मुस्कुराता इसकी धमकती रुखसार से घुमाता हुआ इसके लबों में रख चुका था और आहिस्ता से इसकी मुट्ठियां खोलकर इसमें अपनी मजबूत उंगलियां फंसाकर इसके अपने होने का एहसास दिलाने लगा। और ये एहसास बहुत ही खूबसूरत था कि वो खुद सुपुर्दगी के आलम में हसीन ख्वाब पलकों की नोक पर सजाए इसकी संगत में हम कदम हो गई। यकदम जिंदगी इसकी हसीन लगने लगी थी और इस हसीन मनाजिर को देखकर चाँद शर्मा कर बादलों की ओर में हो गया। आई लव यू स्ट्रा, तानिया तुमसे क्या कह रही थी। वर्ल्डमैन वो बेरुतबा सांसों के दरमियान कहती, इसके कहके लगाने की हमेशा से वजह बनी थी। हाँ, नहीं बता सकता, पर्सनल है बहुत। उसे बाजू में जकड़ कर बोला और हनी मुस्कुराहट छुपाकर इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ गई। अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी खैर नहीं, वो भड़काई। इस वक्त तुम अपनी खैर मनाओ मेरी स्टार, मम्मा को 25 बच्चे चाहिए। वो कहता इसकी हैरत की ज्यादती से चीख खुद में समेट गया।